Thank you. So then, how are you? I'm a little tired. Bilal bhai told me you will come to talk to me. Yes, I've got some good news and I wanted to tell you in person. Did you find a donor? We did. And it's a perfect match. So this is the first big step to getting you well again. So, am I really gonna be okay? It's the first big step. A transplant will get you stronger and help your body to fight back. But there is something I want to talk to you about. What is it? Tomorrow we need to take you into the hospital so we can do some tests and make sure you're ready for the transplant. Do I have to stay in the hospital for a long time? Just a few days this time while we run the test, make sure everything's ready. Then you'll come home, then you'll come back in for the transplant, and then you'll be taking the first steps to getting better. I'm a little scared. I know you are, and that's perfectly natural. You're taking a huge step, but what you have to remember is you're not on your own. I'm here, hopefully your parents will reach, and we'll make sure that everything runs as smoothly as possible. The most important thing is that my friend Bilal bhai will be with me. Always there with you. He'll be around, of course. Now, what I need you to do now is to be strong. You've been so brave up until now, and you need to carry on being brave. You know what? In no time at all, you'll be back outside playing cricket with your friends and doing all the things that you love. Okay, I'll do it. I'll try my best. I know you will, and that's all I want from you. Together, we've got this. Okay? Bilal, Xavier's treatment's reached a critical stage. We must admit him into the hospital tomorrow. Can you both be there by 8 a.m.? We'll be there on time. Hope everything will be ready, so Xavier doesn't have to wait. This is going to be a very challenging journey, Bilal. But what you're doing, it means so much, not only to Xavier, but to his family too. It's okay, doctor. What matters the most is Xavier's health. We're all with you in this, Bilal. What you're about to do is going to give him a whole new lease of life. Bye. Okay. जहाँ मोहब्बत हो जाके पूछो कि जिसको मिलना था कब मिला है। जहाँ भी दिल हो उसे बता दो कि टूट जाना लिखा हुआ है। जो टूट जाओ तो क्या हुआ दिल, तू लाडला है संभाल लेंगे। गम तो जन्मे हैं शिकमे दिल से, जिगर के टुकड़े हैं पाल लेंगे। मगर ये जीने की आबरू है कि तेरे बिन कोई जी रहा है। अरे 2 मिनट तुम्हें देख तो लूं। बड़ी टेक केयर कर रहे हैं मेरी। तंग नहीं करना उनको, कोई जिद भी नहीं करना। मैं क्यों जिद करूंगा? मैं कोई बच्चा हूँ क्या?
अम्मी आ जाएंगी फ्राइडे को। मैं बहुत याद कर रहा हूँ तुमको और अम्मी को, पर तुम लोग ना भी आओ तो बिलाल भाई हैं यहाँ। ओ अच्छा, अकेले रह लोगे तुम? याद तो आएगी तुम्हारी और अम्मी की। पर क्या करूँ, हिम्मत कर ली है मैंने, तुमने ही तो समझाया था। अच्छा सुनो, हाँ, बिलाल अब्दुल्ला भी आते हैं वहाँ, टाइम स्पेंड करते हैं। वो इसी घर में रहते हैं और कल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। डोंट टेल मी। बात कराऊँ तुम्हारे बिलाल भाई से? नहीं नहीं, क्यों नहीं? बोला ना, बस ठीक है। उनसे कह देना कि मैं ऑफिस जा रही थी, जल्दी में हूँ। मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ अम्मी से। एक सेकंड। अम्मी, अम्मी ज़ावियर की वीडियो कॉल। लाओ मेरी बात करवाओ। अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक, आपकी बहुत याद आ रही है। आ रही हो ना सैटरडे को? सदफ को अकेला छोड़ के आएंगी? रह लेगी ना, बहादुर बाप की बेटी है, डरती नहीं है किसी से। वो है तुम्हारे आसपास बिलाल अब्दुल्ला? बात कराता हूँ आपकी बिलाल भाई से। ओ, ये ले आ गए बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हमें माफ कर दो, हमारे दिल में मैल था तुम्हारे लिए। मैं भी सोचती थी तुम ऐसे हो वैसे हो, पर पता नहीं तुम कैसे हो। शर्मिंदा ना करें प्लीज, ये तो मेरा फर्ज था। बोलने दो ना बेटा, गुनाह का एतराफ करने में भी सवाब होता है। वहां मिलूंगी तो हाथ जोड़ दूंगी। वैसे तो मालूम है माफ करोगे, पर वादा कर लो दिल से माफ करोगे। तुम ऐसे हो कि ये भी नहीं कह सकती ज़ावियार का ख्याल रखना। जीते रहो, इससे ज्यादा कीमती दुआ नहीं है मेरे पास। ओके अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही, अपना फोन तो लेती जाओ। अच्छा बेटा, खुश रहो, अपना ख्याल रखो। मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। तुम्हारा नाम लेकर तो बात भी नहीं करता। सुनो, तुम्हारे अब्बा ख्वाब में आए थे। अब्बा? बोले सदफ को भी थैंक यू बोलना। थैंक यू लाडली। अरे नाश्ता तो कर लेती। ठीक है, हाँ मैं बात करूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे ऑफिस मत आना, किसी दिन मिलेंगे तो बात करेंगे। मिलने ही तो आया हूँ। नॉट इन माई ऑफिस प्लीज। तुमने लिखा है कि तुम अभी शादी नहीं करोगी। प्रॉब्लम क्या है? और मैंने जब तुम्हें कहा कि आई कांट वेट, तुमने जवाब दिया किसी और से कर लो। क्या है ये सब?
मैंने जब लिखा है मैं वेट नहीं कर सकता, मतलब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं ऑफिस में हूँ फराज। ऑफिस में इस तरह की बातें नहीं हो सकती। I will meet you in the evening and will explain to you everything. पता है, जब ये लड़की कहती है ना कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, तो वो असल में क्या कह रही होती? ये मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। She's just going to waste your time. And it means go to hell. You know, तुम्हारी बातें मेरे दिल पे लगती हैं और मुझे याद रह जाती हैं। प्लीज हमशा मेरी तरफ देखो, तुम्हारी बातें भी मेरे दिल पर लगती है, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ उन्हें। मैं शाम में मिलूंगा तुमसे, तब तक सचमुच तय कर, अभी शादी नहीं करोगी या कभी मुझसे शादी नहीं करोगी? सुन क्या हुआ? फराज इतने गुस्से में क्यों था? तुम्हें तो पता है ना, उसका गुस्सा दिखाना, मुझ पर रोब जमाना, like a typical man. तो तुम आ जाओ ना, जिस हाल में भी हो पहुंचो यहाँ। मैडम। वालेकुम सलाम। आपकी चाय। थैंक यू अकबर। उसकी नजरों के सामने रहो, पिघल जाएगी तुम्हें देख के। चलो फोन बंद करो अभी। अरे वाह, तुम तो पहले ही पहुंच गई। बहुत भूख लगी है क्या? उस समय बहुत भूख लगती है मुझे। है ना, मुझे भी। अमार का फोन आया था, कह रहा था फ्लैट में दिल नहीं लग रहा उसका। मैंने मना कर दिया कि तुम ऑफिस मत आना, अभी तुम ठीक नहीं। एक बार पूछ तो लो उसे, किस हाल में एयरपोर्ट आया था वो। उसे किसने बताया कि साबिया अमेरिका जा रही, वो भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ? तुमने? चाय पियो, बाद में बात करते हैं।
ऑपरेशन कब है? इंशाल्लाह वेडनेसडे को आंटी। मैं तो सैटरडे को पहुंच रही हूँ। अरे आपके आने की जरूरत नहीं है, मैं हर तरह से इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी अम्मी बन के, कभी सदफ बन के, और कभी मिर्जा साहब की तरह ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलाल अब्दुल्ला को तो मैं कहीं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। भरोसा कीजिए मुझ पर। अच्छा बात करवाओ मेरी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? वहां अमरीकियों का पानी पीते ही हम पाकिस्तानियों को भूल गए। अच्छा सच बताओ, किसी मेम शेम से आंख तो नहीं लड़ा ली वहां? अभी तो मैं छोटा हूँ। अरे छोटे हो तो क्या हुआ, वो तो मर्द था। आप नहीं चाहते कि मैं अमेरिका देखूं तो ठीक है, नहीं आती। बिलाल साहब से बात करवाओ। ये ले बात करें। जी आंटी, अब मुतमईन हैं आप? तो फिर बिलाल ठीक है, अब मेरा लाल तुम्हारे हवाले। कुछ दिनों बाद सेहतमंद जावियार आपके पास होगा, एतबार कीजिए मुझ पे। नहीं, पूरा एतबार करती हूँ तुम पर, और मुझसे ज्यादा तो वो एतबार करती है तुम पर। मुझे आजकल ना जाने क्यों हर पल तेरा ही ख्याल है। क्या दुआ मुझे कोई लग गई या इश्क का ये कमाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सदफ रुको जरा। आओ आओ, बाहर बैठते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चल। आ जाओ, बैठो। आज मैं तुम्हें साफ साफ रोक रही हूँ। रोक रही हूँ तो मतलब मना कर रही हूँ तुम्हें। किस बात से मना कर रही? बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहना। वो भी यही चाहता है। तुम चाहे उससे मोहब्बत करो ना करो, उसे धुतकार कर कहीं भी चली जाओ, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला की तरफ एक कदम ना बढ़ा। क्यों भाई, क्या किया उसने? और ये कब से लगा कि मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ने लग गए? उससे मोहब्बत हो गई है मुझे। कम ऑन हमशा, मुझे तो लगता है कि संकी है वो, दिमाग खराब हो गया उसका। और उसे साफ बता दो कि उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगी। जहन्नुम में जाओगी तुम। यही सोचती रही तो एक दिन जान ले लोगी उसकी। वो मर जाएगा तो सारी जिंदगी तुम गिल्ट में गुजार दोगी। अब चलें? ठहरो। तुम्हें पता है बिलाल अब्दुल्ला शादी क्यों नहीं करता? लड़कियों के साथ उसके मरासिम क्यों होते हैं? वो क्यों पीता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो जिंदगी के बदतरीन वक्त में मेरे काम आया है। आज मेरा भाई जिंदगी की बाजी जीतकर वहां से वापस लौट आता है तो समझ लो खुदा के बाद ये उसकी मेहरबानी से होगा। वरना 8 करोड़ का सोच के तो मेरी जान ही निकल जाती है।
8 करोड़ का चेक लेते वक्त मैंने उसे कहा था कि इसके बदले में उसकी हर बात मानने को तैयार, पर उसने कोई बात नहीं मनवाई। बस इतना कहा कि कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। एंड यू नो, मैंने जब ये कहा था कि इसके बदले में हर बात मानने को तैयार हूं, तो पूरी नीयत से कहा। I meant every word of it. उसकी मामा ने ना उसके पापा को चीट किया था। और वो इसी गम में तड़प के मर गई। ये बात उसके दिल में बैठ गई है। तब से वो औरतों से नफरत करता है। उनकी हर मजबूरियों को खरीदता है। कभी पैसों से, कभी अपने हुस्न सलूक से, और फिर वो औरत की मर्जी होती है कि वो उसके सामने किस बात पर बिक जाए। तुम्हें तो पैसे भी दिए उसने और नाइस्टी भी दिखा दी। कभी उसके घर जाना, 10 जगहों पर उसके पापा की तस्वीर लगी है, उसकी माँ की तस्वीर कहीं भी नहीं है। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, इसलिए तुम्हें खुलकर सारी बात बता दी। आगे तुम्हारी मर्जी। औरत की मर्जी होती है कि वो उसके सामने किस बात पर बिक जाए। वो तो पैसे भी दिए उसने और नाइस्टी भी दिखा दी। उसके मामा ने ना उसके पापा को चीट किया था। तब से वो औरतों से नफरत करता है। उनकी हर मजबूरियों को खरीदता है। कभी पैसों से, कभी अपने हुस्न सलूक से। अमार, ऑफिस क्यों आए हो? अरे अपनी हालत तो देखो। तुम भी पता नहीं क्या चीज। अपनी गाड़ी पर आए हो? हाँ। कम ऑन यार, गाड़ी चलाने की हालत है तुम्हारी। घर में दिल नहीं लग रहा था, सोचा हिम्मत करके ऑफिस ही चला जाऊं। यहाँ आऊंगा तो कुछ खा भी लूंगा, घर में तो भूख नहीं लगती।
दवा ले रहे हो? हाँ वो तो ले रहा हूँ। दोनों मिल गया? हाँ। थैंक गॉड। तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे तो बाद में पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। अच्छा बस करो, सेहत देखो अपनी। सेहत को गोली मारो यार। वैसे तो किसी काम का नहीं हूं। तुम्हारे भाई की जान बचा के उसकी मदद तो कर सकता था। ऑफिस के कपड़े तो पहन कर आते हैं। अच्छा चलो बस, मैं सैंडविच भिजवाती हूँ, खा लेना। तरस आ रहा है तुम पर। बस ये कहा कि तरस आ रहा है तुम पर। खुशी की बात है। या लड़कियां मुंह पे ये नहीं कहती कि मुझे प्यार आ रहा है तुम पे, प्यार की जगह कुछ और बोल देती है। और अब की बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। वार? वार मतलब? क्या यार, तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए क्या क्या पापड़ बेल रही हूँ। बिठा के बिलाल अब्दुल्ला की लाइफ स्टोरी सुना दी, बता दिया कि कैसे वो लड़कियों को फांसता है और अपनी माँ के चीट करने का बदला लेता है। सुनते ही रंग उड़ गया था उसका। उसकी माँ ने किसी को चीट किया था? हाँ यार। किसको? उसके बाप को। रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इस गम ने मार दिया उसके बाप को और उसने अपनी आंखों से उसको तड़प तड़प के मरते देखा। Don't tell me, Amsha. I swear, अम्मार, ये सच है। तुम देखना वो कभी शादी नहीं करेगा, और कभी करेगा तो अपनी बीवी को तड़पा के मार डालेगा। लेकिन वो मिलने मिलाने बात करने में तो ऐसा नहीं लगता। डिसेंसी का कॉल चढ़ा रखा है उसने। अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने इरादे छुपा लिए उसने। ज़ावियार को लेकर जो अमेरिका गया है, उसके पीछे कोई इरादा है उसका? You mean सदफ को फांसने के लिए 8 करोड़ लगाएगा, उसके भाई के लिए अपना वक्त बर्बाद करेगा? ऐसा तो नहीं लगता वो। आजमा के देख लो। नहीं, आजमाने में कहीं सदफ को खो दिया तो मर जाऊंगा मैं। डर गए हो ना? हाँ। मैं भी डर गई थी। जब सदफ ने ऑफिस में पहली बार कदम रखा, मैं भी डर गई थी। ऐसी लड़कियां उसकी कमजोरियां हैं जो उसको भाव नहीं देती।
8 बज गए? हाँ, 8:10 हो गए। फराज आया है। मैं चलूं? नहीं, तुम यहीं जम के बैठो, और जब तक वो यहाँ है तुम यहीं बैठना। आ जाओ। हाय, कैसे हो? आई एम फाइन। ऑफिस गया था तो तुम नहीं थे? छुट्टी पर था। आ जाओ, हम वहाँ टेरेस में बैठ के बात करते हैं। जस्ट 10 मिनट्स। तुम जूस पियो। तो बहुत बहादुर हो यार। जानता हूं कि ये दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने इन्हें बहुत हिम्मत के साथ गुजारना है। लेकिन डर लगता है, क्या मैं वाकई ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और फिर हम वो सब कुछ करेंगे जो तुम्हें पसंद है। प्रॉमिस। क्या हम क्रिकेट खेल सकेंगे? ऑफ कोर्स। लेकिन अभी तुम्हें आराम करना है। बिलाल भाई, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे अम्मी और सनम की बहुत याद आ रही है। जानता हूं यार, अम्मी और सदफ भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तुम्हारे लिए हर लम्हा दुआ कर। जैसे ठीक हो जाओगे हम जाएंगे ना उनके पास। मुझे डर लगता है, अगर कुछ हो गया तो मैं अम्मी और सदफ से मिल भी नहीं सकूंगा। कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है। और तुम ये सब कुछ बहुत कामयाबी के साथ गुजार लो। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपने सब कुछ मुमकिन बना दिया, मुझे नई जिंदगी दी है। ज़ावियार, तुम मेरे भाई हो।
मेरा फर्ज है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें खुश रखूं। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूत बनाया। शुक्रिया भाई, आप मेरी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो हैं। ये जो मेरा इश्क है